और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के किंग कोटी अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी से कोरोना से मुतासरा 3 मरीजों की मौत की इत्तला है। महलूक मरीजों के रिश्तेदारों ने जानकारी दी कि किंग कोटी अस्पताल में 1 घंटे तक ऑक्सीजन न होने की वजह से 20 से ज्यादा मरीजों को दिक्कतों का सामना रहा। इस दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल अमले के इत्तला के मुताबिक टैंकर में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 1 घंटे तक अस्पताल में ऑक्सीजन था ही नहीं और इसी दौरान 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं किंग कोटी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला HRC भी जा पहुंचा है। किंग कोटी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 3 मरीजों की मौत की खबर है। BC वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सेक्रेटरी ने इस मामले को HRC से रुजू किया है। उन्होंने तीनों मरीजों की मौत के लिए महकमा सेहत के अलावा वज़ीर आला KCR, महकमा सेहत के सेक्रेटरी, DMHO, अस्पताल सुपरिटेंडेंट को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने महलबकीन के रिश्तेदारों को फीकस 25-25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। Around 7 persons aged between 35 to 45 were reportedly died because of the lack of oxygen supply. In fact, there are reports that a few days back they received a tanker with oxygen, and another tanker which was on its way to refill that tank lost its way near Jachalla, that is about 100 kilometers from Hyderabad, and because of the delay the refill was not done and the patients have died in the ICU wards. I think this is something either it is a medical negligence or a lethargy by the officials or the staff of the hospital for not seeing that the of oxygen is filled up on time, because there was many patients who were on oxygen supply, and while the oxygen supply was going low, alternative arrangement ought to have been made by the hospital staff. And I think this is a purely a negligence issue, and action must be taken against those who are responsible. 7 youngsters have died, and it is a matter of concern for the entire Telangana. The oxygen supply, earlier also the health minister has stated that there is no dearth and there is no shortage of oxygen supply in the state. Then why this incident has happened? One side, for corona disease people who are there giving their life. Another important is oxygen is not there. In King Koty Hospital, more than 12 or 14 people without oxygen. Oxygen is coming, oxygen is coming. Meanwhile, 12 to 14 people, they have given their life. This is the real situation in Telangana. And other side, our Honorable Prime Minister is talking to the Chief Minister. Your idea is good, your way of function is good, and he is appreciating is whatever he talked to the all points he was agreed. And for that purpose, 5 kilo rice, state government 5 kilo rice by central government. The present situation in May and June, there is a serious situation. Corona, the second phase will be increasing. So my request to the Honorable Chief Minister, why don't you give advice to the Honorable Prime Minister? 5,000 you give it, 5,000, Narendra Modi can give it for 10,000 for 2 months. Everybody will, their house only, nobody will come out. You are not putting lockdown, only curfew. Even curfew also there is. आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाली कोविड एम्बुलेंस को तेलंगाना पुलिस की जानिब से सरहद पर रोक दिया जा रहा है। सूर्यापेट कोदार मंडल के रामपुरम टोल गेट के करीब तेलंगाना पुलिस ने कोरोना से मुतासरा मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस को रियासत में दाखिल होने से रोक दिया। तेलंगाना में ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत की वजह से दीगर रियासतों के मरीज तेलंगाना में इलाज फराहम करने से अब उनको इनकार किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड मिलने के बाद ही आंध्र प्रदेश के मरीजों को इलाज के लिए तेलंगाना में दाखिले की इजाजत दी जा रही है।
वहीं आंध्र प्रदेश से आने वाली एम्बुलेंस को तेलंगाना में दाखिले से रोकने पर सीपीआई ने तशवीश का इजहार किया। सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने पुलिस के तरीक़ेकार पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इस मामले में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मदाखलत की भी अपील की। ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పేషెంట్స్ ఎవరైతే అంబులెన్స్లో వస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తెలంగాణ బార్డర్లో ఆపుతున్నారు పోలీసులు అంటే ఇంతకంటే ఘోరమైన నీచమైన పని మరొకటి లేదు. ఇవాళ మెరుగైన వైద్య సౌకర్యం కావాలంటే సహజంగానే ముందు నుంచి కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చేవాళ్ళు హైదరాబాద్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. అదేవిధంగా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు బంధువులు అనేక మంది హైదరాబాద్లో ఉన్నారు కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ కోసం హైదరాబాద్ కావడం అనేది ఆనవాయితీ. ఇక్కడే కాదు దేశంలో ఎక్కడుంటే అక్కడ పోతారు. ఇవాళ అనంతపురం బార్డర్లో ఉండే వాళ్ళు సహజంగా బళ్ళారికి బెంగళూరుకి పోతూ ఉంటారు. కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ రకంగా అంబులెన్స్ ఆపలేదు. తెలంగాణ పోలీసులకు మరి ఏం రోగం వచ్చిందో ఇవాళ ఆ రకంగా ఆపడం సరైంది కాదు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ మనం అందరం కూడా కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా వారి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకుండా ఈ రకంగా మీ పోలీసులకు అధికారం ఇచ్చి అంబులెన్స్లు ఆపి వారి మార్గమధ్యంలో అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. సరైంది కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారు జోక్యం చేసుకొని తక్షణమే పోలీసుల్ని ఆ పని మానుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా అన్ని ప్రాంతాల వారు కూడా మనం అందరం ఒకటిగా ఉండి కరోనా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల ఆరోగ్యము ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ముందుకు రావాలి. అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తక్షణమే కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడి ఇది జరగకుండా కూడా దాన్ని ఆపాలని చెప్పి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. वज़ीर आला केसीआर ने व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 2 माह के लिए 5 किलो मुफ्त चावल सप्लाई करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। फिलवक्त रियासत भर में 1,20,000 से जायद प्राइवेट टीचर्स को माहाना 2,000 रुपये और 25 किलो चावल मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नज़र वज़ीर आला केसीआर ने रियासत भर के तमाम व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 2 माह तक मुफ्त में 5 किलो चावल फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एक और अहम खबर, दिल्ली या फिर मुंबई के मुकाबले में हैदराबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत बेहतर है। ऑक्सीजन की सप्लाई में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर कर दिया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने ये बात कही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी के साथ मुनक्किदा इजलास में भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर बातचीत हुई। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकर्स को बिना किसी रुकावट के नॉन स्टॉप भेजा जा रहा है। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में महकमा पुलिस की जानिब से कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों को मदद फराहम करने के मकसद से हेल्प डेस्क कायम किया गया है। अस्पताल के बाहर मरीजों के रिश्तेदार परेशान हैं। मरीज की तफसीलात फराहम करने के अंदरूने 5 मिनट मरीज की सेहत से मुतालिक उनके रिश्तेदारों को जानकारी दे दी जाएगी। ఒక పేషెంట్కి అటెండర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి మైండ్లో చాలా క్యూరియాసిటీ చాలా అప్రిహెన్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దే వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్. తర్వాత కొంతమంది దూరం నుంచి కూడా ఈ డెడికేటెడ్ ఒక ల్యాండ్ లైన్ ఉంది, ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంది. దే క్యాన్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. లోపల ఏమవుతుంది, బెడ్కి ఏం సిచ్యువేషన్ ఉంది, పేషెంట్స్కి ఎట్లా సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి డైరెక్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ ఈ సందర్భంలో ఎంటైర్ మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ, ఆల్ డాక్టర్స్, నర్సెస్, టెక్నికల్ స్టాఫ్ అందరికీ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఒక పెద్ద సెల్యూట్ కూడా చేస్తున్నాము. ఈ క్రైసిస్ టైంలో, పర్టికులర్లీ ఈ సెకండ్ వేవ్ క్రైసిస్ టైంలో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్లో మన లీడర్స్ ఆల్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. అండ్ యాజ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అండ్ కీపింగ్ దేర్ మొరాల్ హై. ప్రతి హాస్పిటల్లో చాలా మంచి వర్క్ జరుగుతుంది. ఈరోజు మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు నేతృత్వంలో ఒక మీటింగ్ జరిగింది, ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్. ఈ మీటింగ్లో కూడా మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్స్ ఈ గురించి కూడా చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది. హైదరాబాద్లో ఆక్సిజన్కి స్కార్సిటీ ఏం లేవు. వీఆర్ ష్యూర్ దాట్ సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ ఈస్ కమింగ్. అన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఈచ్ హాస్పిటల్కి రూట్ క్లియర్ ఉంది. మన డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీసర్ విత్ జీపీఎస్ వీ విల్ బి మానిటరింగ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాంకర్స్. ట్రైన్ల ద్వారా కూడా ట్యాంకర్స్కి మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. ముంబై, ఢిల్లీ, క్యాల్కటా, బెంగళూరు సిటీకి కంపారిజన్లో హైదరాబాద్లో సిచ్యువేషన్ మచ్ బెటర్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అండర్ కంట్రోల్. దెర్ ఈస్
सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सैयद शाह खैरुद्दीन ने हज हाउस से मुत्तसिल इमारत को कोविड सेंटर में तब्दील करने का वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से मोहम्मद सलीम चेयरमैन बने हैं उस वक्त से मुसलमानों की कीमती अराजियात को कौड़ियों के दाम पर लीज पर दिया जा रहा है। उसके बाजू जो बिल्डिंग खाली है वहाँ पर कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन के लिए वहाँ पर इस्तेमाल के उसको काबिल बनाया जाए। और आपसे ये मुतालबा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड का सालाना जो बजट है, जो आमदनी है, अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ना आप ज़मीनें किसको कितने पर जो ना लीज पर दिए उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। शहर में जिस तरीके से एक रियासती मिनिस्टर ने एक शादी खाने को लेकर वहाँ पर मरीज़ों को जो ना रखने का इंतज़ाम किया है, तो वक्फ बोर्ड की जानिब से पुराने शहर में एक दो शादी खानों को लेकर वहाँ पर मरीज़ों को वहाँ पर आइसोलेशन के लिए रखने का भी इंतज़ाम किया जा सकता है। आपको इस जानिब फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वक्त का अहम तकाज़ा है और यही सबसे बड़ी इंसानियत। हैदराबाद में कोरोना का टीका हासिल करने के लिए यानी कोरोना की वैक्सीन के लिए आवाम को बेहद मुश्किलें पेश आ रही हैं। दवाखानों में लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक कतार में खड़े रहने के बावजूद वैक्सीन न मिलने पर आवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। किंग कोटी अस्पताल में वैक्सीन हासिल करने के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। सेकेंड डोज वैक्सीन के लिए अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और वैक्सीन न होने पर लोगों ने हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा देखा गया। आज फी लीटर पेट्रोल पर 26 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत में 34 पैसों का इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 53 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 82 रुपये 6 पैसे हो गई है। इसी तरह हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 13 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 83 रुपये 47 पैसे हो गई है। कीमतों में इजाफे से लोगों की जेब पर भारी बोझ देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक साल पहले हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ में कोरोना का शिकार होने वालों की तदफीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान अलॉट किया था। एक साल गुजर जाने के बावजूद इस कब्रिस्तान में कोई काम नहीं किया गया। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम को ज़बानी जमा खर्च वाला चेयरमैन करार दिया। मोहम्मद सलीम साहब 22 जून को करीब 11 महीने का अरसा हो रहा है पहाड़ी शरीफ के पास 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान किए, लेकिन आज तक वहाँ पर एक मैयत की तदफीन अमल में नहीं आई और ना वहाँ पर तदफीन के कोई इंतज़ामात किए गए हैं। और तुरफा तमाशा ये है कि शहर के कई क़ब्रिस्तान जो काबिल इस्तेमाल उसको लाया जा सकता है, जैसा कि जियागुड़े का 14 एकड़ का क़ब्रिस्तान है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल 3 साल से मुसलसिल तवज्जो दिला रही है और ख़ुद चेयरमैन साहब दौरा किए, लेकिन 5 महीने का अरसा हो चुका है, अभी तक सर्वे नहीं किया गया। और चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो ये आपकी ईमानदारी नहीं है। ये वक्त बड़ा नाजुक है। मैं चेयरमैन साहब से पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ कि पहाड़ी शरीफ का जो 10 एकड़ ज़मीन का आप जो ऐलान किए हैं वहाँ पर उसकी निगरानी के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए किसी तंजीम का इंतखाब किया जाए और वहाँ पर गुस्ल खाना तामीर किया जाए और शहर से मैयतों को लाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। और इस वक्त फ्लैट सिस्टम ज़िंदगी होने की वजह से फ्लैट्स में मैयतों को गुस्ल देना मुश्किल मसला हो रहा है। ये आपके लिए ये इम्तिहान का वक्त है और ये आपके जो ना ईमान की यहाँ पर जो ना का इम्तिहान है कि आपके दिल में इंसानियत का और अल्लाह और उसके रसूल का थोड़ा भी एहसास और खौफ है, तो आप पहली फुर्सत में 10 एकड़ ज़मीन को वहाँ पर मैयतों की तदफीन का सिलसिला शुरू करेंगे और फौरी किसी तंजीम की निगरानी में उस जो ना ज़मीन को आप जो ना दे दीजिए ताकि वो लोग अपनी निगरानी में वहाँ पर तदफीन का काम कर सके। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल का हैदराबाद के इलाके कोठी में वाक़े ऑप्टिकल शॉप में अचानक आग लग गई। हनुमान टीकरी के करीब वाक़े निकोडा कॉम्प्लेक्स में वाक़े ऑप्टिकल
शॉप में ये आग लगी। देखते ही देखते करीब में वाक़ई कपड़े और प्लास्टिक की दुकानों को भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। 3 फायर ब्रिगेड की कामयाब जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सुल्तान बाजार पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। टीआरएस एमएलसी के कविता के हाथों 200 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। हाईटेक सिटी इलाके में आर्ट ऑफ लिविंग और IAHV की जानिब से 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है।